Hello everyone. Today we are going to study about crystal field theory and it is one of my favorite theories. So let's begin. Crystal field theory जिसको हम प्यार से CFT भी बुलाते हैं and it is based on electrostatic model. Electrostatic model, do you understand what is electrostatic model? It means that it is based upon the attraction between the different charges like positive and negative charge. So it is based on that. It talks that ionic bond, it's talk about purely ionic bond. मतलब मेटल लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है ना वो प्योरली आयनिक है. एज वी हैव स्टडीड इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दे वर टॉकिंग अबाउट द ओवरलैपिंग, दे वर टॉकिंग अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन. इसमें नो हाइब्रिडाइजेशन इज देयर, नो ओवरलैपिंग इज देयर. दिस कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली neglected or discarded by crystal field theory. So it is not talking about covalent bond, it is purely talking about the ionic bond. Electrostatic force of attraction, I already told you, it is between metal ion and the ligand. Fine. So ligands, जो crystal field theory होती है वो कहती है कि जो ligands होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं. There are two kinds of ligands and those two kinds are point charges. I hope it is visible to all of you. Point charges and point dipoles. What do we mean by this? Point charges means purely negative ligands and point dipole means neutral ligands. Like point charges, because ligand are electron rich species, that's why they are coming to donate the electrons. So point charges refer, for example, fluoride ion, hydroxide ion, chloride ion, because they have the negative charge and it is treating the ligands as point charges or point dipoles. Whatever the ligand is there, it is treating them as point species. Bromide ion, cyanide ion, got it? And point dipole means neutral ligands. Point dipole means what? Neutral ligands. For example, H2O, NH3. Got it? They don't have any negative charge, they are neutral. That's why they are treating it as dipoles. Then how can dipole show electrostatic force of attraction? I will show you, don't worry. It is ionic compound. NaCl is an ionic compound. आयन इंटरेक्शन कब बात करेंगे? जब हम पॉइंट चार्जेस लेंगे, जैसे फ्लोराइड लेंगे, हाइड्रोक्साइड लेंगे, क्लोराइड लेंगे, ब्रोमाइड लेंगे, Cn माइनस लेंगे, जो भी लेंगे. जैसे कि Mn पॉजिटिव है यानी कि मेटल आयन है. मेटल आयन पे क्या करते हैं बच्चे? मेटल आयन और जो हमारा फ्लोराइड आयन है ना बच्चे, उसके बीच में क्या हो जाता है? आयन इंटरैक्शन हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि इनमें आयन इंटरेक्शन होंगे बिकॉज देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द फ्लोराइड आयन डाइपोल. नाउ टॉकिंग अबाउट द डाइपोल point dipole, neutral ligands. For example, I am talking about H2O. I am taking the same metal ion, Mn positive. It is a hypothetical name, don't worry about the which metal is this. Now in this case dipole is formed. Dipole means oxygen is electronegative as compared to hydrogen and hydrogens. So this has partial negative charge. So there will be attraction between these two, positive charge and the negative charge. This is ion dipole interaction. See, this is a dipole. It has a partial positive charge, partial because it is not an ionic compound. It has a partial positive charge and it has a partial negative charge. Partial positive, partial negative. Interaction will be there between negative charge and the positive charge as we have seen in ion interaction. So this partially negative part is interacting with the positive part. Got it? Okay. Thank you for understanding. Studying about crystal field splitting in octahedral complexes. We know that 5d orbitals are there. dxy, dyz, dxz, dx square minus y square, dz square. dxy बोले तो dxy means that the electron density is present between the x-axis and the y-axis. And we know that d orbital, I'm so sorry.
D subshell is d orbitals are double dumbbell shape, so it forms like this. 1, 2. You can see that between the axis the electron density is present. Got it? Similarly, in dyz, suppose this is y is axis and this is z axis. So electron density is present within the axis. They are not present on the axis. They are present in between the axis. Mind the terms. Okay, bacha? Now xz. Suppose this is the z axis and this is the x axis. It is present in between the axis. Electron density is present in between the axis. Whereas dx square and minus y square, whereas dz square, the electron density is present on the axis. See the difference? इनमें बीच में present था, इनमें on the axis present है. dx square minus y square. अगर मैं इसको लूँ, this is x axis and this is y axis, then electron density is present like this. Okay, बच्चा? Similarly, in dz square, this is z axis and this is let's say this is x axis. So electron density is present like this, and there is a collar of negative charge. On the z axis, electron density is present. Got it? अब बच्चे होता ऐसे है कि जैसे कि हमारा ये मेटल आयन है, मेटल आयन अपनी पोजीशन पे था, इट वाज सिटिंग वेरी कंफर्टेबली, बट एज सुन एज इट सेंसेस द अप्रोच ऑफ द लीगेंड, senses at the approach of ligand means it doesn't mean that it has eyes or it has brain, but it can feel the repulsion. Obviously it can. There are two kinds of repulsion. I will be teaching you what those two kind of repulsion are there. Ligand आ रहा है तो इसको repulsion feel होगा, तो repulsion feel होगा. Now it is getting uncomfortable now to maintain its stability, because let me make one thing very clear, that attraction increases energy. Sorry, I'm mistaken. Attraction decreases energy. भाई किसी से आप अट्रैक्ट होगे तो आप एनर्जी ज्यादा दिखाओगे कि कम दिखाओगे? कम एनर्जी दिखाओगे. अट्रैक्शन डिक्रीजेज एनर्जी, कम एनर्जी दिखाओगे. लेकिन किसी से रिपल्शन है, किसी से लड़ाई है, तो आप अपनी एनर्जी का भरपूर आपकी उछाल खाएगी. गुस्सा उछाल खाता है तो रिपल्शन इंक्रीजेज एनर्जी. गॉट इट? नाउ when the metal ion senses the ligand, so it feels that ligand is surrounding it from the spherical field, like चारों तरफ से ligand का हमला हो रहा है. It feels like that. It is not able to sense कि actually आ कहाँ से रहे हैं, because the ligand is still far away, but somehow it is able to sense it. So ligand, it feels that the ligands are approaching from a spherical field. Like ligand is coming from here, ligand is coming from here, ligand is coming from here, ligand is coming from here. मतलब ये ligand आ रही हैं. ligand के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? Got it? Fine. Now you see, when the metal ion was in a free state, free state in the sense it was not under the influence of any kind of ligand. Got it? And suddenly it started sensing the symmetrical spherical attack, like that some danger is coming or something is coming which is increasing my energy. तो इसको तो लग रहा है कि चारों तरफ से अटैक हो रहा है, तो जो पांचों के पांचों ऑर्बिटल है ना, इनका क्या होगा? रिपल्शन शो करेंगे कि भाई वी विल नॉट अलाउ. So to represent this repulsion, to represent this repulsion कि सबकी एनर्जी ना बराबर इंक्रीज होती है. सबकी एनर्जी क्या करती है मेरे बच्चे? बराबर इंक्रीज करती है. सी अर्लियर दे वर डीजनरेट का मतलब क्या होता है? डीजनरेट का मतलब ये होता है कि दे ऑल हैव द सेम एनर्जी, स्टिल दे आर डीजनरेट बट दे हैव द हायर एनर्जी. दिस साइड रिप्रेजेंट्स एनर्जी. Like it is earlier it was this much, then it has increased to that much. So this is a hypothetical state. वो उसको लगता है मेटल आयन को. ये क्या रिप्रेजेंट करती है हमारी? ये हमारी रिप्रेजेंट करती है स्फेरिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड को. किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चे? स्फेरिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड को. गॉट इट?
और ये जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं इनके नाम तो आपको पता ही है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये आपको पता है। बच्चे जैसा कि मैंने बताया कि मेटल आयन सेंसेस दैट अटैक इज फ्रॉम द स्फेरिकल वे, लाइक चारों तरफ से हमला हुआ है, बट जब वो और नजदीक आता है ना लिगेंड, तब मेटल आयन को रियलाइज होता है कि रिपल्शन इज मैक्सिमम अलोंग डी एक्स स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर पे हमला हुआ है, हमला डी एक्स वाई और डी वाई जेड डी एक्स जेड पे नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा हुआ तो सवाल ये उठता है कि इन्हीं पे ही क्यों अटैक हुआ। सवाल ये उठता है कि हमने क्या बिगाड़ा है भाई, हम पे क्यों अटैक। असल में जो लीगेंट का पाथ था ना, पाथ वो था कि जो लीगेंट ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो लीगेंट आता है वो अलोंग द एक्सिस आता है। और जब मैंने आपको ये डायग्राम बताया था, जब मैंने आपको ये ऑर्बिटल्स के शेप दिखाई थी, तब मैंने बताया था कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड तो इन बिटवीन द एक्सिस है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये क्या है बच्चे, अलोंग द एक्सिस है। तो ये तो मेन बैठे हुए हैं, तो अटैक तो इन पे ज्यादा होगा, हालांकि असर उन पे भी पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन क्या होता है अटैक तो मेन इन्हीं पे ही हो रहा है। तो दे रियलाइज कि ओ द अटैक वाज ऑन डी एक्स वाई एंड डी वाई जेड। तो अब क्या करते हैं, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड अपनी एनर्जी को क्या कर देते हैं बच्चा, लोअर कर देते हैं कि ये तो हम पे हुआ ही नहीं था, हम तो बेवकूफ बन गए। हाँ, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनकी एनर्जी और बढ़ जाती है कि अब तो हम अकेले रह गए, और रिपल्शन होता है भाई कि अब तो इन्हीं पे अटैक हुआ है ना। तो ये हो गया। तो पहले आपने देखा कि मेटल आयन जब फ्री स्टेट में था तब इनकी डीजनरेट थी, एक लोअर एनर्जी लेवल था इनका, एनर्जी अगेन इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी, ठीक है, ये एक लोअर एनर्जी लेवल था। और फिर उसके बाद क्या होता है, स्फेरिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड आती है। मतलब ये इमेजिन करते हैं, ये हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट है कि अच्छा अटैक चारों तरफ से हुआ है तो सबकी एनर्जी अब भी ये डिजनरेट ही है, लेकिन क्या है हायर एनर्जी होती है। बट जैसे लीगेंड्स अप्रोच करते हैं ना, देन इट रियलाइजेस कि जो लीगेंड्स है वो अटैक कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई और डी जेड स्क्वायर पे रिपल्शन ज्यादा होता है और इन पे रिपल्शन कम होता है। तो रिपल्शन ज्यादा बोले तो हायर एनर्जी, आई टोल्ड यू रिपल्शन इंक्रीजेस एनर्जी। तो और सो रिपल्शन इज मैक्सिमम अलोंग डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। द रीजन यू ऑलरेडी नो, बिकॉज लाइज ऑन एक्सिस, ये जो है ये एक्सिस पे लाई करते हैं, ligands approach along the axis. Got it? Ligands approach along the axis. I hope this is clear to you. Yes. अब जो इन दोनों के बीच का जो ये पहले जो हाइपोथेटिकल स्टेट आई थी बच्चे, इसको हम क्या कह देते हैं, इस वाले जो एनर्जी लेवल को हम क्या कह देते हैं, बेरी सेंटर कह देते हैं। क्या कह देते हैं मेरा बच्चा, बेरी सेंटर कह देते हैं। आगे बात समझ में। अब जितना इंक्रीज हुआ है ना, जितना इंक्रीज हुआ है उतना ही ये डिक्रीज करते हैं। मतलब बोले तो मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना मैक्सिमम, और यहाँ कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखें, मैं बताती हूँ, हर एक इलेक्ट्रॉन के इसको जो है ना, इसको हम कह देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नोट से। आगे बात समझ में। अब जैसे ये है तो हर कितना लोअर हुआ है बच्चे, ये लोअर हुआ है -0.4 डेल्टा नोट। -0.4 डेल्टा नोट हर एक इलेक्ट्रॉन का है। जैसे कि अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, मैं बताऊंगी आगे, तो उसकी एनर्जी कितनी कम हुई है सिस्टम की, 0.4 कम हुई है। और अगर मतलब एक ऊपर होता तो उसकी क्या होती, 0.6 होती। 0.6 और 0.4 का क्या सिग्निफिकेंस है बच्चे। अब आप मुझे बताओ मैक्सिमम कितने फिल हो सकते थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते थे ये इस वाले में। इस वाले ये जो हमारा बन जाता है ना, ये वाला जो ग्रुप बन जाता है जो लोअर एनर्जी का होता है बच्चे, इसको कह देते हैं T2G। क्या कह देते हैं बच्चे, और इसको कह देते हैं EG। क्या कह देते हैं बच्चे। और जो G है ना, G रिप्रेजेंट्स क्या करता है, गिरेडे मतलब क्या होता है, एक जर्मन वर्ड है, वैसे तो बताते नहीं है। इसका मतलब होता है सिमेट्रिकल। ऑक्टाहेड्रल आपने देखा है ना, ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है कि मतलब 4 तो ऐसे प्लेन में होते हैं और एक ऊपर नीचे होता है।
जितना ऊपर उतना नीचे, जितना इधर उतना इधर, तो इसलिए सिमेट्रिकल होता है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल के केस में जी लगा देते हैं। ठीक है बच्चे, तो 3 नीचे आ जाते हैं, 2 ऊपर आ जाते हैं। इसमें मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, तो कितने की एनर्जी लोअर हुई? 6 इंटू -0.4 कितना हुआ? -2.4 डेल्टा नोट एनर्जी लोअर हुई। इतनी एनर्जी लोअर हुई ना बच्चे। वहीं अगर मैं, ये 4 है बच्चे, 4 ऊपर मैक्सिमम 4 आ सकते हैं, अगर मैं चारों की एनर्जी इंक्रीज बता दूं तो कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई? 2.4 डेल्टा नोट इंक्रीज हुई। तो वही हुआ ना कि जितनी एनर्जी इंक्रीज हो रही है उतनी डिक्रीज कर दी। बैरी सेंटर का यही मतलब है कि बैरी सेंटर ये होता है कि मतलब एक बैलेंस होता है, इसका मतलब। आगे बात समझ में? ये आपको याद रखने की -0.4 डेल्टा नोट हो गया और 0.46 होगी यहाँ पे। ये डिक्रीज होती है, वो इंक्रीज होती है। आगे बात समझ में? थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस मच। बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जो रिपल्शन होता है, रिपल्शन मैक्सिमम कहाँ होता है? अलोंग dx² - y² और dz²। लेकिन जो रिपल्शन होता है, रिपल्शन कैसा रिपल्शन, किस चीज का रिपल्शन? तो बच्चे 2 तरह का रिपल्शन होता है। कैसा रिपल्शन? 2 तरह का रिपल्शन होता है। कौन सा रिपल्शन होता है? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बोले तो जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, उनका रिपल्शन, और जो है और मेटल आयन के भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका रिपल्शन। आगे बात समझ में? वो होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। और एक और रिपल्शन होता है, वो होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन। क्या होता है मेरे बच्चे? न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन। मतलब मेटल आयन में भी न्यूक्लियस है, लिगेंड में भी न्यूक्लियस है, तो उनके बीच का जो रिपल्शन होता है उसको क्या कह देते हैं बच्चे? न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन कह देते हैं। हालांकि जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन होता है, इट इज नेग्लिजिबल, इट इज नेग्लिजिबल। गॉट इट? उसके बाद जो ये आता है कि जो सेपरेशन होती है ना, हमने अभी सेपरेशन भी पढ़ी थी, आई गेस यस वी हैव स्टडीड अबाउट द सेपरेशन। जो ये सेपरेशन होती है ना T2G और EG के बीच में, इसको हम क्या कह देते हैं? और इनटू 2 और मोर एनर्जी लेवल्स इन जो अगर आप हायर क्लासेस में केमिस्ट्री को परस्यू करते हैं, देन यू वुड रियलाइज कि जो हमारी जो स्प्लिटिंग होती है ना, वो 2 से ज्यादा एनर्जी लेवल्स में भी होती है। जैसे आप स्क्वायर प्लेनर में पढ़ोगे, आगे टेट्रागोनल में पढ़ोगे, मतलब स्क्वायर प्लेनर के केस में होता है। ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन हमारे सिलेबस में तो 2 एनर्जी लेवल ही हैं, तो T2G और EG, उसके बीच में जो स्प्लिटिंग होती है ना, उसको हम क्या कह देते हैं बच्चे? उसको हम कह देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या कह देते हैं बच्चे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और जो एनर्जी गैप होता है ना बिटवीन T2G एंड EG, एनर्जी लेवल्स, उनको क्या कह देते हैं बच्चे? उनको हम कह देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या कह देते हैं बच्चे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम डेल्टा नोट से रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में। आगे हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सेम नहीं है। CFSE पढ़ेंगे, CFSE होती है स्टेबलाइजेशन एनर्जी। समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को CFSE समझ लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। आगे बात समझ में? अब मैं आपको बताती हूँ कि जो डेल्टा नॉट होता है ना बच्चे, डेल्टा नॉट, ये 10 DQ, एक और यूनिट होती है एनर्जी की, 10 DQ के बराबर होता है। तो जितनी लोअर होती है ना, -0.4 लोअर हो रही है, तो उसकी जगह हम कह सकते हैं कि 4 DQ लोअर हो रही है। और ऊपर 0.6 वो डेल्टा नॉट लोअर हो रही है, उसकी जगह हम क्या कह सकते हैं? 6 DQ हाई हो रही है। सॉरी, लोअर बोल दिया मैंने, वो हाई होती है 6 DQ। गॉट इट? फाइन। नाउ मूविंग। तो बच्चे, हमने देखा कि जो डी ऑर्बिटल्स है ना, वे क्या हो जाते हैं, उनके बीच में स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी हो जाती है। लेकिन पी ऑर्बिटल्स का हमने स्प्लिटिंग नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि 3 तरह के पी ऑर्बिटल्स होते हैं, PX, PY और PZ। ठीक है, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द लाइज ऑन द एक्सिस। ये जब एक्सेस पे ही लाई करते हैं, इट लाइज ऑन द एक्सेस, तो इनमें क्या स्प्लिटिंग होगी? स्प्लिटिंग तो तब होती है ना कि एक पे अटैक हुआ है और पे अटैक नहीं है, दे ऑलरेडी लाई ऑन द एक्सेस।
Now we will be studying about factors affecting crystal field splitting energy. Factors कौन कौन से हैं ये crystal field splitting energy को? पहली बात है nature of ligands. Nature of ligands क्या होते हैं कि कुछ होते हैं strong ligands और कुछ होते हैं weak ligands. Strong ligands और weak ligands बोले तो जिनके अंदर high splitting power होती है कि उनकी इन्फ्लुएंस पे आज जो energy gap होता है ना T2G और EG के बीच में वो ज़्यादा हो तो उनको क्या कह देते हैं? strong ligands कह देते हैं. यानी कि क्या बोला मैंने? high splitting power. क्या होता है बच्चे? हाई स्प्लिटिंग पावर. यानी जो उनके केस में जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होती है ना बच्चे वो क्या हो जाती है? ज़्यादा होती है. और जिसके केस में जो एनर्जी गैप होता है T2G और EG में इतना नहीं होता तो वो क्या हो जाते हैं बच्चे? लो स्प्लिटिंग पावर हो जाती है उनकी. क्या हो जाती है बच्चे? लो स्प्लिटिंग पावर. समझ में आई आपको इतनी बात? आई होप यस. नाउ spectrochemical series. Spectrochemical series is an experimentally determined series which arranges our ligands in increasing order of their power, splitting power. मतलब जितना कम splitting power होगी हमारे ligand की वो पीछे आएगा और जितनी ज़्यादा होगी वो आगे आएगा. As you can see that I minus, Br minus, SCN minus, Cl minus, S2 minus, F minus, mostly जो halogen वाला part होगा वो हमारा क्या आएगा? वीक फील्ड लिगेंड आएगा. और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो होते हैं EN, CN माइनस CO. Let me make one thing very clear that there are many more ligands in this spectrochemical series, but I am sticking to the NCERT data because NCERT is the basis of 12th class. So the second factor which determines the nature of metal ions. I'm so sorry. The second thing which determines the crystal field splitting energy is the nature of metal ions. Like it states that higher the charge on metal ion, higher will be the value of crystal field splitting energy. So as you can see, there are two complexes given this side, and I have already determined their oxidation number. You can see, and here CO2 positive is there, and here CO3 positive there. Higher the charge, higher the crystal field splitting energy. तो आप मुझे ये बताओ इन दोनों में से किसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली अभी ये मैंने बताया कि हायर द चार्ज ऑन मेटल आयन हायर विल बी द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. तो CO3 पॉजिटिव की ज़्यादा होगी. इज इट क्लियर? क्लियर. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए एक तो हमारा क्या था? एक तो हमारा था कि उस मेटल आयन के ऊपर चार्ज कितना होगा वो होगा. हायर द चार्ज ऑन मेटल आयन हायर विल बी इट्स splitting energy. Now the second thing which is determined is determining the crystal field splitting energy is that the series. हम 3D series की बात कर रहे हैं, 4D की बात कर रहे हैं, 5D की बात कर रहे हैं. तो बच्चे ये होता क्या है? 3D series you already know, 4D, 5D. As we go down the group as we go, so we will find that in the same period when we go down the group we will find that there will be an increase in crystal field splitting energy by 30 to 40% with successive increase in the group. हमें पता है जैसे 3D सीरीज होती है जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ये सब आते हैं. फिर आती है हमारी 4D सीरीज में उतना ज़्यादा होगा. जैसे कि अभी कोबाल्ट है हमारा. कोबाल्ट में जो हमारी ये सीरीज़ होती है एक सेम पीरियड की मैं सीरीज़ की बात करती हूँ. मतलब सेम पीरियड, यस, सेम ग्रुप की बात करती हूँ. सेम ग्रुप और डिफरेंट पीरियड्स होते हैं इसमें. जैसे CO, RH, इरीडियम. तो आप जैसे अगर सेम ऑक्सीडेशन नंबर है ना और सेम नेचर ऑफ लिगेंड्स भी सेम है तो उसमें मतलब लिगेंड्स भी सेम है, नंबर ऑफ लिगेंड्स भी सेम है और सेम लिगेंड्स है तो जो ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है. तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि इनकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये 30 to 40% ज़्यादा होगी और इसकी भी 30 to 40% क्या होगी मेरे बच्चे? ज़्यादा होगी. क्यों होगी? देखो CO2 पॉजिटिव है, RH2 पॉजिटिव है, IR2 पॉजिटिव है. तीनों में ऑक्सीडेशन नंबर सेम है. ये 3D सीरीज़ का ले लिया, ये 4D सीरीज़ का ले लिया, ये 5D सीरीज़ का ले लिया मैंने. ठीक है बच्चे. अब ये तीनों लिगेंड्स को मतलब इनको ना लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं. आई हैव शोन लिगेंड्स लाइक दिस. अब
लिगेंड्स को मैंने सेम जगह पे रखा है, एंड यू कैन सी दैट डाउन द ग्रुप size increases. We know that size increases down the group. Now the distance between 3D series elements is this much, 4D is this much, and 5D is this much. So you can see that as its size is more, that's why it will experience maximum repulsion. Maximum repulsion means more crystal field splitting energy, क्योंकि जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतने ही. अब आप ये देखो, NH3 is the only ligand in all the 3 cases and 6 ligands are only there. And when we go on determining their oxidation numbers are also same, CO2 positive, RH2 positive and IR2 positive. बाकी सारी चीज़ें सेम है, डिफरेंस आया देखो, नंबर ऑफ लिगेंड्स भी सेम है, लिगेंड कौन सा है वो भी सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है. डिफरेंस इतना है कि ग्रुप तो सेम है, ग्रुप तो सेम है, लेकिन पीरियड्स अलग अलग हैं. तो अगर पीरियड है तो 3D वाले का कम होती है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, 4D की फिर 30 to 40% ज़्यादा होती है और 5D की और ज़्यादा होती है. तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर ये रहेगा. आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट. फाइन. नाउ मूविंग अहेड. अब बच्चे जो होता है, हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में. वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं. वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं बच्चे जिसमें वीक फील्ड लिगेंड लगा होता है. वीक फील्ड लिगेंड कौन सा होता है, जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो डेल्टा नॉट है ऑक्टाहेड्रल के केसेस में वो कम होती है, और स्ट्रॉन्ग क्या होती है, ज़्यादा होती है. मतलब स्ट्रॉन्ग में क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या होती है मेरे बच्चे, ज़्यादा होती है. इज इट क्लियर माय डियर चिल्ड्रन. हाँ दीदी क्लियर है. इसके बाद कैसे पता चला कि ये कम होती है ज़्यादा होती है. जैसे ना मैं अभी आपको फीलिंग बता रही हूँ ना, तो मैं एक कॉम्प्लेक्स ले लेती हूँ D4, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D4. आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू. D4 है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब इसमें भी D4 लेती हूँ मैं, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस. यू सी दैट क्रिस्टल फील्ड जो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में कम है और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में ज़्यादा है. तो अब मेरे बच्चे देखो, हर्ट्ज़ रूल से मैं ये T2G वाला तो बना दूंगी, T2G वाला अपना फिल कर दूंगी. 1 2 3 ये फिल हो गए हमारे. और देखो इसकी कम है तो हमारा इलेक्ट्रॉन फटाक से उसमें जा सकता है. पेयरिंग नहीं करवाएगा वो. पेयरिंग क्यों करवाएगा, पेयरिंग में क्या लगता है बच्चे, एनर्जी लगती है. पेयरिंग में क्यों लगती है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. तो अब ये है, इतना वो आराम से कूद सकता है, इतना स्पेस नहीं है. अब जैसे आपने वो देखा होगा कि जब गाय कोई वो करती है, गाय का छोटा बच्चा होता है, उसके पैर अगर होते हैं कहीं, पैर छप जाए, मिट्टी है और उसमें फिर क्या आता है, बारिश आ जाए तो उसमें पानी आ जाता है. तो एक छोटा बच्चा चल रहा है या हम चल रहे हैं तो हम उसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं, हमारी इतनी एनर्जी नहीं लगेगी. तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन वाला इस वाले में इजीली जंप कर सकता है. जब उसे मौका मिल रहा है खुल्लम खुल्ला एक अलग कमरे में रहने का, एक अलग जगह पे रहने का, तो वो क्यों बिच्चम बिच्चा हो इसके साथ, क्योंकि डेल्टा नॉट की वैल्यू कम है, इतना वो अफोर्ड कर सकता है कूदना. वेयर अगर D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के केस में होता मेरे बच्चे, तो क्या होता है, ये वाला तो वही होता 1 2 3 हर्ट्ज़ रूल से. लेकिन अब फोर्थ क्या जाएगा, अब इसकी एनर्जी ज़्यादा है. अब ये ऐसा कि ना हम चल रहे हैं और सामने गाय का वो नहीं, गाय ने जो गड्ढा किया था वो नहीं, गाय के बच्चे ने जो गड्ढा किया था, अब आ गया एक तालाब पानी से, मतलब एक समुद्र आ गया पानी से भरा हुआ. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू जंप ओवर इट. उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा मतलब सिस्टम हमारा. इसीलिए वो सोचता है कि थोड़े पैसे लगा के मैं एक शिप हायर कर लेता हूँ. वो शिप क्या है हमारी, शिप है हमारी पेयरिंग एनर्जी. पेयरिंग एनर्जी आई विल बी एक्सप्लेनिंग, डोंट वरी. तो यहाँ पे वो थोड़े से पैसे दे के इसको कहता है भाई अपने साथ रूम में एडजस्ट कर ले हैं, और एडजस्ट हो जाता है. तो ये ऐसा हो जाएगा. तो आप ये देखो मेरे बच्चा कि अगर मैं D4 का केस लेती हूँ दोनों के केस में, तो आपने देखा कि जो मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके केस में आए, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के केस में. तो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के केस में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है ना मेरा बच्चा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होते हैं मेरे बच्चे, मोर होते हैं.
और वेयर एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें मोर क्यों बोला, 1 2 3 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें सिर्फ 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इस केस में कितने हो जाएंगे मेरा बच्चा, लेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे, लेस हो जाएंगे। आई होप इट इज विजिबल टू यू। ठीक है, अब आप ये देखो इसके केस में नो पेयरिंग। नो पेयरिंग का मतलब ये है कि जहां जरूरत पड़ेगी ना, जैसे कि अब देखो अगर D5 होता तो D5 यहाँ पे फिल हो जाता, D5 इसके केस में यहाँ फिल होता, और D6 होता, D6 इसके केस में क्या होता, इधर फिल होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो पेयरिंग नहीं करेगा। अगर ये D6 होता, मैं आपको बताती हूँ, अगर ये D6 होता, इज इट विजिबल, या इट इज। सो अगर ये D6 होता तो D6 होता तो स्प्लिटिंग तो वैसे ही होती है ऑक्टाहेड्रल में, तो यही होता है T2G नीचे और EG ऊपर। T2G में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और EG में क्या होते हैं मेरा बच्चा, 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये D6 होता मेरे लाडले, तो इसमें कैसी फीलिंग होती, 1 2 3, अब ये जंप कर जाएगा, अलग रूम में रहेगा, 4 5 6। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पेयरिंग नहीं करवाएगा। वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस पेयरिंग कराते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है ना, मतलब जहाँ पैसे देने पड़ जाए वहाँ, तो आप ये कह सकते हैं एक तरह से नो पेयरिंग, नो ज़बरदस्ती वाली पेयरिंग। जहाँ पड़ेगी भाई, जहाँ रहना होगा वहीं तो रहेगा ही बंदा। अब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी के घर में रुके हम आगे बस, इसीलिए नो पेयरिंग का मतलब आप समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ नो पेयरिंग से। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो पेयरिंग करवाई है ना, वहाँ पे ऊपर रूम थे लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा वहाँ जाना, तो यहाँ पे पेयरिंग करवाते हैं हम जानबूझ के। वहाँ जानबूझ के नहीं, वहाँ मजबूरी है। वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के केस में मजबूरी है, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग करवा ही जाती है। आगे बात समझ में। अब मेरे बच्चे एक बात सुनो, स्पिन जो होता है, स्पिन क्वांटम नंबर आपने सुना होगा। स्पिन क्वांटम नंबर हम ये कह देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर दो इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल्स में रह रहे हैं ना, सो वी विल बी कंसीडरिंग कि एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा मेरे बच्चा, प्लस हाफ स्पिन होगा, और सेकंड वाले का क्या होगा, -½ होगा। हम आर्बिट्रेरी किसी को भी +½ ले सकते हैं, किसी को भी -½ ले सकते हैं मेरे बच्चा। ठीक है, अगर मैं +½ लेके चलती हूँ कि ये जो ऊपर वाले हैं +½ के और नीचे वाले -½ के, तो इसमें देखो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 × 1/2 कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा ना मेरे बच्चे, यानी कि स्पिन ज़्यादा हो जाएगी। और इसके केस में 1 2 3 3/2 हो जाएगा, -½ तो स्पिन इसके कंपैरिजन में कम है ना। हैव यू गॉट दिस पॉइंट, कि जैसे लेट मी मेक दिस वन वेरी क्लियर, कि अगर स्पिन मेरे को कैलकुलेट करनी है तो यहाँ 4 हैं ऊपर वाले, इनको मैंने ½ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और आ गया स्पिन 2। इसके केस में 3 है ऊपर वाले, और मैंने इसको ½ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो हो गया। लेकिन आप ये बात ध्यान से देखो ना कि एक ये भी तो है -½ वाला केस, ये भी तो कम करेगा। तो आप देख लो कितना होगा ये, इसका स्पिन आएगा 1 आएगा। आई गेस आई हैव डन इट राइटली, यस, इसका स्पिन आएगा 1। तो ये वीक फील्ड, मतलब अब हमें क्या पता चला कि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म मेरे बच्चे। वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि स्पिन ज़्यादा है, उनमें स्पिन ज़्यादा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं मेरे बच्चे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। Is it clear, my dear children? Thank you so much for understanding this much. अब बच्चे, जब मैंने आपको बताया वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के केस में, जैसे कि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के केस में जब मैंने D6 वाला एक्सप्लेन किया था, 1 2 3 4 5 6, अब इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट यहाँ आने के। अगर वहाँ कोई और रूम खाली होता तभी आता, ये इसका हक है, यहाँ पे ये पैसे नहीं देगा। अब इसको कोई और जगह नहीं है तो हॉस्टल में कहीं तो रहना पड़ेगा इसे, तो ये इसका हक है। अब इसके लिए इसको पैसे नहीं दे, क्या पैसे, कैसे पैसे, आई विल बी टीचिंग, डोंट वरी, अभी के लिए बस सुन लो। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, 1 2 3 और ये ऊपर वाले माले भी खाली हैं,
ऊपर वाले फ्लोर पे भी रूम खाली है, लेकिन जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये कहता है कि नहीं, मुझे नीचे वाले फ्लोर पे ही रहना है। अब ये तो जबरदस्ती किसी के घर में रह रहा है, अब जबरदस्ती रह रहा है तो पैसे भी देने पड़ेंगे, कि अगर किसी का घर यूज कर रहे हो तो आप किसी का घर यूज कर रहे हो तो यहाँ पे इसको पैसे देने पड़ेंगे। अब जो ये पैसे है ना मेरे बच्चे, ये होते हैं पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी कि आप मेरे साथ पेयर कर रहे हो, हालांकि आप सिंगल रह सकते हो लेकिन आपको करना है पेयर, मुझे आपके पास ऑप्शन भी अवेलेबल है फिर भी आपको पेयरिंग करनी है, तो यू हैव टू पे। अब पे करने का क्या मतलब है, वो पे करने का मतलब है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, लाइक यू आर लिविंग विद समवन, यू हैव टू पे देम। सो नाउ टेलिंग यू पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, देखो मैंने प्लस का साइन लगाया है। केमिस्ट्री में जो प्लस का साइन होता है ना, इसका मतलब ये होता है, केमिस्ट्री में प्लस का साइन ये होता है कि एनर्जी कंज्यूम हो रही है। प्लस का साइन मतलब क्या होता है मेरा बच्चा, एनर्जी इज गेटिंग कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम हो रही है हमारी। अब हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है यानी कि हमारा पैसा क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। पैसा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज पैसा इज मोर रिलेटेबल। आगे बात समझ में। और जहाँ तक बात आती है कि डेल्टा नोट की, डेल्टा नोट क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है मेरे बच्चे, इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस में क्या होती है मेरे बच्चे, एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज जहाँ पे होती है ना, अब कैसी एनर्जी रिलीज, क्या एनर्जी रिलीज बताऊंगी, अब बस सुनते जाओ कि एनर्जी रिलीज होती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के कारण क्या होती है मेरे बच्चे, एनर्जी रिलीज होती है। और रिलीज को केमिस्ट्री में नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, इफ़ यू हैव स्टडीड इन थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th, इफ नॉट स्टिल आई हैव टोल्ड यू। अब क्यों भाई, क्यों पेयरिंग एनर्जी क्यों कंज्यूम हो रही है भाई अगर तुम किसी के साथ रह रहे हो तो उसके साथ लड़ाई झगड़े भी होंगे तुम्हारे। अब ये आप एक ऑर्बिटल में रह रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपस में क्या होगा, रिपल्शन भी होगा। रिपल्शन में एनर्जी तो जाती ही है, रिपल्शन में एनर्जी तो जाती ही है। और हर चीज़ अपने क्या करते हैं, जो नेचर होता है ना, नेचर अपनी एनर्जी को कम ही करना चाहता है। लोअर द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। अब यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये तो अच्छी बात है क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। यहाँ कंज्यूम हो रही है एनर्जी, यहाँ पे हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एनर्जी मतलब कंज्यूम का मतलब ये नहीं है कि रिलीज हो रही है, कंज्यूम का मतलब ये है कि हमारा पैसा खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा है ना सिस्टम मतलब वो हो जाता है कि इसमें अपना देना पड़ता है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं चीज़ों का, मतलब पैसा देना पड़ता है। यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज अच्छी बात है। आगे बात समझ में। वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, अब मैंने ये बताया था कि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिसमें वीक फील्ड लिगेंड होता है, और मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि वीक फील्ड लिगेंड्स कौन सी है। मैंने बताया था वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अगर आपको याद नहीं है तो ये देखो मैंने बताया था आपको, इज इट विजिबल, यस इट इज। मैंने बताया था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, नो पेयरिंग, इसमें पेयरिंग होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर होते हैं, सब बताया मैंने आपको। लेकिन एक और चीज़ है, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, देखो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में जब मैंने आपको ड्रॉ किया था ये D4 का, अब इसमें देखो, इसमें चाहता तो ये क्या कर सकता था, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकता था, लेकिन अब इसने देखा कि अगर मेरे को पैसे ही लगाने हैं, मतलब अगर मेरे को ये लगाना ही है, मतलब इधर जंप करने में एनर्जी लगानी पड़ेगी, इधर एनर्जी लगानी पड़ेगी, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी एनर्जी वो करना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि अगर मैं इधर लगाता हूँ तो ज़्यादा पैसे कहाँ पे लग रहे हैं, तो इसके केस में देखा, इसमें तो थोड़े से, मैं इसमें तो ऑटो में से काम चल जाएगा, मेरा ऑटो से चला जाऊँगा, काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें आया ना तो मेरे को एरोप्लेन जितना खर्चा देना पड़ेगा। आई बात आपको समझ में कि जो मैं अगर ऊपर वाले में रहा तो मेरा खर्चा कम होगा। अब जैसे अब ये मैं कह सकती हूँ, जैसे हम किसी पीजी में रहते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ऊपर वाले रूम्स है ना उनका रेंट कम होता है और नीचे वाले रूम्स का रेंट क्या होता है मेरे बच्चे, ज़्यादा होता है। अब ये देखता है कि अगर मैं ऊपर वाले में रहूँगा ना तो रेंट बहुत कम है और इसमें इसके साथ रहूँगा तो ज़्यादा पड़ेगा, ज़्यादा लॉस होगा, तो ये ऊपर वाले में रह। तो इसका मतलब उसके केस में क्या हुआ, वीक फील्ड लिगेंड के केस में, कि जो पेयरिंग एनर्जी है ना, पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है डेल्टा नोट के कंपैरिजन में, ज़्यादा है। तो वो सोचता है कि डेल्टा नोट है, इसको तो मैं कर लूँगा,
डेल्टा नोट ही ठीक है, मैं उससे जंप लगा के अपने आप रह लूंगा ऊपर वाले माले पे। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं कि पेयरिंग में रहने से क्या होता है, खर्चा कम होता है डेल्टा ऊपर, मतलब ऊपर वाले रूम के, तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कम है। तो अब हमारे लिगेंड्स बेवकूफ़ नहीं है बच्चे। जैसे D1 है, D1 तो दोनों के केस में सेम होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी और वीक फील्ड में भी। लेकिन D6 होता तो D6 में यहाँ एनर्जी लगती, यहाँ एनर्जी लगती हमारी, ऊपर जाना पड़ता है या यहाँ पे आना पड़ता स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, जैसे कि इसमें बताया था मैंने। तो यहाँ पे ये जो पेयरिंग एनर्जी होती है वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के केस में, पेयरिंग एनर्जी होती है ज़्यादा, पेयरिंग एनर्जी होती है ज़्यादा। जैसे D4 का केस ले लो आप, पेयरिंग एनर्जी होती है ज़्यादा, तो ये कहता है मैं ऊपर ही रह लूँगा। इसके केस में जो होता है पेयरिंग एनर्जी कम होती है ऊपर, ये जो जंप लगा के ऊपर रहने का सिस्टम है ना, ये बहुत महंगा पड़ जाता है, उसकी काफ़ी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, इसलिए वो कहता है पेयरिंग एनर्जी के ही पैसे दे दूँगा। आगे बात समझ में, इज इट क्लियर? तो मैंने जैसे यहाँ पे फिल किया तो T2G में कितने आया, एक इलेक्ट्रॉन आया। तो मैं यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो, T2G में आया 1 और EG में आया 0, EG में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया। सिमिलरली इसके केस में क्या होता है, T2G में आया 1 और EG में आया 0। ठीक है बच्चे। और D2 के केस में देखो, D2 में 1 2, इसमें भी क्या होगा बच्चे 1 2, तो इसमें भी क्या है, T2G में आया 2 और EG में आया 0, T2G में आया 2 और EG में आया 0। तो आप देखेंगे D1 D2 D3 इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे आप लो वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब बात आती है D4 कॉम्प्लेक्स की। D4 कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं हम। D4 कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होता है 1 2 3। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो इसमें क्रिस्टल फील्ड कम होगा, इतनी एनर्जी वो कंज्यूम कर सकता है अपनी, इतनी एनर्जी क्या कर सकता है वो अपनी लगा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे बच्चे, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, पेयरिंग में उसको खर्चा ज़्यादा लग रहा था। तो यहाँ T2G कितना हो जाएगा, T2G हो जाएगा 3 और EG कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 1 हो जाएगा। और इसके केस में क्या हो जाएगा 1 2 3। अब इसको ऊपर जाना महंगा पड़ रहा है, ये सोचता है कि नीचे पेयरिंग में ही रह लूँ, पेयरिंग का खर्चा कम है, तो ये यहाँ पे कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, T2G में तो आ जाएगा ये 4 और EG में कितना आ गया 0। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। देखो मैंने कहा है D1 D2 D3 इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो सेम होगी। अब D4 का केस आप देख लो, D4 के में अलग जा रही है, D5 के में भी अलग जाएगी, D6 के में भी अलग जाएगी, आप करके देख लें। D7 के में देखते हैं होता है क्या। D7 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7। आगे बात समझ में, इसमें फिल करके देखती हूँ 1 2 3। अब इसमें ऊपर जाने का खर्चा ज़्यादा है, तो ऊपर जाने का खर्चा ज़्यादा है तो फिर ये क्या सोचेगा, पेयरिंग कर लूँगा 3 4 5 6 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई, T2G 5 EG 2 और इसके केस में T2G 6 EG 1। तो मेरा बच्चा मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से। लेट मी चेक आई हैव मेड अदर थिंग्स एज वेल और नॉट। जो D1 D2 D3 इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हुआ या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, दोनों के केस में क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल के केस में बच्चे सेम होगी। वेयर एज D4 D5 D6 D7 इन चार के केस में डिफरेंट होगी, और D8 D9 D10 में भी क्या होगी, सेम होगी। आप करके देख लेना, मैं ये नहीं कह रही याद करो, आप खुद करके देखना। आगे बात समझ में, आई होप इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। बच्चे अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है कि अगर हम 3D ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करते हैं ना, और ऑक्सीडेशन नंबर है +2, तो टिल NH3 मतलब इंक्लूडिंग NH3, जो हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमने पढ़ी थी ना, उसमें मैं आपको दिखा देती हूँ वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये देखो, उसमें NH3 को इंक्लूड करना है। NH3 तक क्या होते हैं मेरे बच्चे, वीक फील्ड लिगेंड माने जाते हैं। यानी कि आपको दिमाग में क्या रखना है, आपको दिमाग में ये रखना है, मतलब देयर आर मैनी अदर थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड, बट यू सी इन एट योर स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बता रही हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है। NH3 तक मतलब जितने भी है ना NH3 तक,
वो सारे वीक फील्ड हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या क्या याद रखने हैं, EN है, CN माइनस है, CO, एक NO भी याद रख सकते हो, वो भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आपको ये 3 ही याद करने की ज़रूरत है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और जो हमारा एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है मेरा बच्चा, 3D सीरीज़ का होता है। इज़ इट क्लियर माई डियर चिल्ड्रन? थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंड। तो जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है टिल NH3 इंक्लूडिंग NH3, इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारे कंसीडर किए जाते हैं वीक फील्ड लीगेंड्स। क्या कंसीडर किए जाते हैं मेरा बच्चा, वीक फील्ड लीगेंड्स कंसीडर किए जा सकते हैं। इनके केस में वीक फील्ड के केस में बता दिया था ना मैंने, कोई पेयरिंग नहीं होती है, मतलब ज़बरदस्ती वाली पेयरिंग नहीं होती, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जैसे D8 D9 D6, मतलब सब में जहाँ पे भी पेयरिंग की ज़रूरत होगी, आप अच्छे से जानते हो, वहाँ पे क्या होगा हमारा, वहाँ तो होगी, वरना ज़बरदस्ती वाली वीक फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग नहीं कराते। और +2 ऑक्सीडेशन में आफ्टर NH3, जैसे आपके सिलेबस में जो आफ्टर NH3 दे रखे वो EN है, CN माइनस है, CO है, और मैंने कहा है कि NO भी आप याद कर लेना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यू हैव टू कीप इन योर माइंड, बट आई एम नॉट सेइंग इट टू मेमोराइज। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको और क्लियर होती जाएगी, तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू learn it by heart, you will understand all the things on your own। +2 आफ्टर NH3 ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो जाते हैं। आगे से ना मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को SFL लिखूंगी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है भाई लिखने में, SFL। ठीक है बच्चे। नाउ अगर 3D सीरीज ही है तो टिल NH3 जो होते हैं ना, मतलब ये FE तक, जैसे मैंने आपको 3D सीरीज याद कराई थी, मतलब ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कराई थी मैंने, तो आप लोगों को भी याद होगी, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं DNF ब्लॉक कराऊंगी। हालांकि जो जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं DNF ब्लॉक के वो मैंने करा रही हूँ साथ साथ। जो 3D सीरीज़ है वो तो आपको आनी ही चाहिए बच्चे। तो 3D सीरीज़ में स्कैंडियम से लेके आयरन तक, जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है पूरी सीरीज़, तब ये आयरन तक की जो बात है ना, आयरन तक की जो बात है, इसमें टिल NH3 जो होता है ना, टिल NH3 बोले तो इंक्लूडिंग NH3 जो होता है, ये इनका वही केस होता है जो ऊपर वाले का है। इंक्लूडिंग NH3 क्या होगा, ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। बट व्हाट अबाउट दीज CO3 पॉजिटिव, Ni3 पॉजिटिव बच्चे, Ni3 पॉजिटिव, Cu3 पॉजिटिव। पहली बात तो ये बच्चे कि ये ना Ni3 पॉजिटिव और Cu3 पॉजिटिव दे डोंट एग्जिस्ट। लेकिन मेरा बच्चा एक बात आप समझो मेरी ध्यान से, इवन दे डोंट एग्जिस्ट, अगर एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे आपके नीट में आप पूछ लें, JEE में पूछ लें, या आपके CBSE बोर्ड में पूछ लें, या CUET में पूछ लें, तो उसमें क्या होता है, CUET में बहुत पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन चैप्टर, लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर, तो उसमें पूछ लें, तो वहाँ पे मतलब मैं ये कह रही हूँ कि FE के, तो हम वहाँ लड़ाई करने तो बैठेंगे नहीं कि ये तो नहीं एग्जिस्ट नहीं होता, हमें कुछ तो करके आना पड़ेगा ना पेपर में। तो देखो FE3 पॉजिटिव तक तो ये जो ऊपर वाला केस ही है, और जो ये CO3 पॉजिटिव है ना, इसमें जो होते हैं या इसके बाद वाले जो होते हैं FE3 पॉजिटिव वाले, इसमें सारे लिगेंड्स जो होते हैं, सारे लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं, एक्सेप्ट 7 लिगेंड्स। वो 7 लिगेंड्स कौन से हैं हमारे, एक तो हमारे हेलोजन्स हैं, जैसे आयोडाइड आयन है, आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, अब ये सल्फाइड है, SCN माइनस है, N3 माइनस है। मतलब पहले तो 4 हमारे फ्लोराइड या पहले तो 4 हमारे हेलाइड वाले याद कर लो, फिर ये 3 याद कर लो, ये 7 होते हैं। ये इनको क्या, ये काम करते हैं वीक फील्ड लिगेंड की तरह। ये किसकी तरह काम करते हैं, इनके केस में वीक फील्ड लिगेंड के। तभी तो जब मैंने ऊपर यहाँ पे बताया कि टिल NH3 जो होते हैं या इंक्लूडिंग NH3 क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। लेकिन जब हमने VBT की थी तब हमने देखा था कि वीक फील्ड लिगेंड NH3 होने के बावजूद भी पेयरिंग शो की है। क्यों की थी, क्योंकि आपने ध्यान से देखा होगा कि उसमें CO3 पॉजिटिव था। CO3 पॉजिटिव में सभी लिगेंड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं, तो पेयरिंग तो कराएंगे ही, एक्सेप्ट दीज 7। क्लियर? एंड दिस पॉइंट इज लाइक अ स्टार पॉइंट, यू कैन से। फाइन।
अब जो सी एन माइनस है, सी ओ है, एन ओ है, ये मैंने बताए थे आपको कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं एंड दे विल ऑलवेज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ऑलवेज क्या होते हैं मेरा बच्चा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोले तो हमेशा पेयर्ड, मतलब जहाँ ज़रूरत ऊपर वाले रूम्स भी खाली होंगे तब भी ये पेयरिंग करवाने की सोचेंगे, पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मैंने बताया है कैसे, आप ध्यान से देखना एंड स्टिल यू हैव एनी क्वेरी कॉमेंट डाउन। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है बच्चे, इतनी बात आपको समझ में आई। इसके बाद जो बात आती है, जो 3D ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो जो उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 4 है या 4 से ज़्यादा है तो वो हमेशा क्या बनाएंगे, अब वो 4 और 4 से ज़्यादा है तो उनकी स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था कि मेटल आयन, हायर द चार्ज ऑन मेटल आयन हायर विल बी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो वो अगर बढ़ जाएगी तो वे हमेशा क्या बनाएंगे मेरे बच्चे, हमेशा क्या बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, नो मैटर व्हाट द लिगेंड इज, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर आप लिगेंड अगर उनके साथ ईएन भी ले लेते हो ना तो भी वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो भी वो पेयरिंग शो करेंगे, हालांकि ऊपर वाले रूम्स खाली होंगे। रूम्स में ईजी को कह रही हूँ, ईजी के ऑर्बिटल्स को। आगे बात समझ में, क्यों बनाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा मेटल आयन पे उतनी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा, वो सोचेंगे कि पेयरिंग देके इतनी एनर्जी वेस्ट होगी, पेयरिंग के पैसे देके ही रह लेता हूँ नीचे। आगे बात समझ में, इतना क्लियर है। अब 4D और 5D सीरीज मैंने बताया था कि अगर हमारा ग्रुप सेम है और जो पीरियड है वो अलग हो रहा है, यानी अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है हमारा, सॉरी अलोंग द ग्रुप क्या हो रहा है हमारा, वो अगर हम देखते हैं कि एलिमेंट्स को देखते हैं तो कोई भी लिगेंड हुआ, क्योंकि मैंने बताया था 30 to 40% क्या करती है, इंक्रीज करती है विद, मतलब जैसे कि 3D 4D और 5D में ये होता है कि अगर सेम ग्रुप है और पीरियड अलग अलग है तो 30 to 40% इंक्रीज इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आता है। तो 4D और 5D सीरीज में क्या होता है, ये हमेशा क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं, ये भी हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, क्योंकि इंक्रीज करती है क्रिस्टल फील्ड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लीगेंट, मतलब कोई भी लीगेंट हो ये हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस से बनाएंगे। वैसे आपके सिलेबस में ना मोस्टली 3D सीरीज का ही पूछते हैं, मैं एक बात ऑनेस्टली बता दूँ आपको। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है, जैसे CONS36 है, 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे CO का कोबाल्ट का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D7 4s2। अब CO2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव इस पे ऑक्सीडेशन नंबर है, तो CO2 पॉजिटिव की कितनी हो जाएगी मेरा बच्चा, 3D7 हो जाएगी, 4s0 हो जाएगी, और इसके केस में कितनी हो जाएगी बच्चे, 3D6 हो जाएगी। आगे बात समझ में इतनी। अब इसकी मैं जब फिलिंग करती हूँ ना, देखो ध्यान देना, मैंने कहा था CO2 पॉजिटिव है तो टिल NH3 इंक्लूडिंग NH3 क्या होंगे, ये हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। तो अब इसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे, 1 2 3। अब ऊपर वाली स्प्लिटिंग कम है ना, क्योंकि लो स्पिन में क्या वीक फील्ड लिगेंड कम स्प्लिटिंग करते हैं, सॉरी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस यानी कि मोर स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो गया हमारा। इतनी बात आ गई। तो T2G में कितने आए, T2G में आए 5 और EG में कितने आए मेरा बच्चा, 2 आए। अब इसमें क्या है, COH2O6। अब इसमें कोबाल्ट की तो इलेक्ट्रॉनिक कम है, लेकिन यहाँ CO3 पॉजिटिव है। CO3 पॉजिटिव में मैंने ये कहा था जब वो Fe के बाद वाले होते हैं ना, उसमें एक्सेप्ट दो 7 एलिमेंट्स जो हमारे आएंगे, एक्सेप्ट दो 7 एलिमेंट्स हमारे जितने भी आते हैं ना, वो क्या बनाते हैं, वो हमारे जो होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस ही बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या आएगा, T2G6 और EG2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है ये होती है CFSE। अब CFSE क्या होता है मेरा बच्चा, CFSE होती है स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कोई भी इसको स्प्लिटिंग एनर्जी नहीं कहेगा, स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंट होती है और स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिफरेंट होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है ना ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, कैसे होती है मैं बताऊंगी आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने डायग्राम शो करा था आपको कि ये बच्चे, ये है T2G वाला
और ये Eg वाला, इतनों की एनर्जी डिक्रीज होती है और ऊपर वाले दो की इंक्रीज होती है। तो जो ओवरऑल होता है ना, लिगेंड अपने आप को इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल इस ढंग से कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड की जो ओवरऑल होता है ना वो नेगेटिव में वैल्यू आती है, या फिर जीरो आएगी या नेगेटिव में आएगी। कोई भी अपनी एनर्जी हाई क्यों करेगा? हाई एनर्जी मीन्स लेस स्टेबिलिटी, तो वो इस ढंग से अपने, तभी तो पेयरिंग एनर्जी वगैरह का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया कि थोड़ी लो एनर्जी रहे। डी, जैसे डी एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ऑर्बिटल में एन जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं और T2G में मान ले P है और Eg में Q है। जैसे हमने पढ़ा था, जैसे हमने इसमें किया था, जो पहले वाली चीज़ थी उसमें ये करा था, जैसे इसके केस में T2G Eg 2 है, तो इसके केस में P5 इज 5 एंड Eg इज Q, तो वही वाली चीज़ है। तो आप ये देखोगे कि T2G में अगर P आ रही हैं, P ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, तो P की तो एनर्जी कम होगी ना। T2G में तो -0.4 डेल्टा नोट होती है, P की तो एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे मैं ये कर दूंगी कि -0.4 इंटू P जो है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G रिप्रेजेंट कर रहा है P, तो उनकी तो एनर्जी कम होगी, प्लस कितनी एनर्जी और लगेगी Eg में कितने गए हैं बच्चे, Eg में जितने गए हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो 0.6 एनर्जी बढ़ती है। जब मैंने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम कराया आपको तब आपने देखा होगा इनकी Q नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ी होगी। और ये क्या होता है, डेल्टा नोट की टर्म्स में हम पढ़ते हैं, तो डेल्टा नोट। और इन केस हाँ, अगर हम पेयरिंग कराते हैं ना, मतलब पेयरिंग बोल रहे तो ज़बरदस्ती वाली पेयरिंग, जब जगह खाली है तब भी पेयरिंग कराते हैं, तो मान लें M इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी हमने ज़बरदस्ती पेयरिंग करवाई है, हालांकि ऊपर वाले रूम्स खाली, ज़बरदस्ती इन द सेंस कम पैसे देना पड़ रहे हैं, मतलब पेयरिंग एनर्जी कम होती है ना जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की बात करते हैं, तो उस वाली के P फॉर पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पे बच्चे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो M रिप्रेजेंट करता है, ये M रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से पेयर्स? वो वाले पेयर्स नहीं जो जिनकी जगह ही वो थी कि लाइक हमने D6 में पढ़ा था कि ऊपर 5 हो गए थे पूरे और एक छठा आना था, वो वहीं आना था, उसमें पेयरिंग एनर्जी काउंट नहीं होगी। पेयरिंग एनर्जी काउंट होगी जैसे हमने D4 पढ़ा था। लेट मी शो यू इफ आई हैव नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये P क्या रिप्रेजेंट करता है मेरा बच्चा? ये रिप्रेजेंट करता है पेयरिंग एनर्जी को। आगे बात समझ में? मैंने आपको दिखाया था एक चीज़, मैं उसी डायग्राम को फिर से लाती हूँ आपके सामने। जैसे कि इसमें D4 के केस में 1 2 3 4 ये हो गया, लेकिन अब देखो इसके पास जगह थी तो ये ऊपर चला गया, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। और यहाँ पे इसके केस हालांकि देखो यार ऊपर गया है तो 0.6 एनर्जी इंक्रीज होगी, 0.6 इंक्रीज होगी ना। क्यों इंक्रीज होगी बताया ना मैंने आपको, क्योंकि ये इंक्रीज होती है इतनी, लेकिन फिर भी इतनी नहीं वो होगी हमारी, इंक्लूड होगी एनर्जी। क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी जो है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा महंगी पड़ रही थी। मैंने आपको बताया था कि वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो सोचता है कि यहाँ वाली एनर्जी बढ़ जाए तो ही ठीक है, इतनी मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन इसके केस में ऊपर वाले में जा सकता था, लेकिन इसने पेयरिंग कर, तो यहाँ पे इसको पैसा देना पड़ेगा, और P जो है वो उस पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चे जैसे आप ना, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर, जैसे वो डीजेनरेट लेवल था तो T2G में कितनी एनर्जी कम हो रही थी, T2G में जो एनर्जी कम होती है 0.4 डेल्टा नोट कम होती है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना कम करना पड़ेगा। और इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है 0.6 डेल्टा नोट। आगे बात समझ में आपको इतनी। और ये टोटल जो होती है ना, टोटल जो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है, इसको हम क्या देते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स अर्लियर एज वेल। अब एक बार मैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE को हम अच्छे से करते हैं, अच्छे से इन द सेंस आप देख लेना कैसे। जैसे कि CO है, CO का मैंने क्या बताया था, CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2 और इसमें CO2 पॉजिटिव है, तो CO2 पॉजिटिव का कितना होगा बच्चे, 3d7। तो CO2 पॉजिटिव की जब हम फिलिंग करते हैं ऑन अप्रोच ऑफ NH3, जब NH3 आएंगे तभी वो होगी, यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी, अदरवाइज वो डीजेनरेट लेवल पे रहेंगे। तो इसके केस में क्या होता है बच्चे, क्योंकि CO2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव के केस में NH3 इंक्लूडिंग NH3 जो होते हैं वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस 1 2 3 4 5 6, आगे बात समझ में, एंड 7।
तो इसके केस में आपने देखा कि T2G में कितने जा रहे हैं, T2G में जा रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स बोले तो इसमें क्या होगा, T2G में हम जा रहे हैं 5, तो 0.4 इंटू 5 कर देंगे हम, प्लस क्या करेंगे बच्चे, प्लस करेंगे ये दो, क्योंकि 2 की एनर्जी इंक्रीज होगी ना, 0.6 से इंक्रीज होगी, तो 0.6 इंटू 2 कर देंगे। अब जो भी वैल्यू आएगी ना, ये डेल्टा नोट में आएगी, क्योंकि डेल्टा नोट होती है ना, तो आप देख लेना कितनी वैल्यू आती है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी कितनी आएगी, -2, और इसकी कितनी आएगी, +1/1.2 डेल्टा नोट। तो ओवरऑल एनर्जी क्या हो रहा है, -0.8, मतलब ओवरऑल एनर्जी कम हो रही है ना। अब स्प्लिटिंग से हमारी एनर्जी कम हुई, तो इसीलिए जो कंफ्यूजन आया था ना कि पेयरिंग एनर्जी से तो हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, यहाँ से एनर्जी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, आपने देखा ना कि हमारे लीगेंट के अप्रोच से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है इस ढंग से हो गई कि जो सिस्टम की एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज एनर्जी यानी लो एनर्जी मीन्स मोर स्टेबिलिटी, तो अच्छी बात है ना। उसके बाद Mn है, Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कितनी होती है मेरा बच्चा, 3d5 4s2। अब ये Mn 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेना, तो इसकी हो जाएगी 3d5। आगे बात समझ में बच्चे। इसके बाद जब हम इसकी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो यार Cn माइनस मैंने बताया था हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, तो 3d5 है, 1 2 3 4 5। तो T2G के केस में कितने आए, 5 इलेक्ट्रॉन्स आए। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आए तो इसमें क्या हुआ, तो जो CFSE होगी -0.4, और कितना हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन्स है मेरा बच्चा। और उसके बाद क्या होगा, डेल्टा नोट लिख लो ताकि यूनिट लगाना मत भूलना। वैसे तो यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, CBSE बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, पर CUET में, नीट में ये क्वेश्चंस आते हैं एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो इसकी आ जाएगी माइनस, तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हुई है, देखा ना, तभी मैंने बताया था कि डेल्टा नोट से क्या होते हैं, एनर्जी रिलीज हो जाती है। समझ में आया कि मैंने क्यों बताया था ऐसा, उस टाइम पे कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन अब क्लियर हुआ वो कन्फ्यूजन, थैंक यू। अब इसके केस में CO है, CO के केस में 3d7 4s2। अब 3d7 CO 3 पॉजिटिव है मेरा बच्चा, 3 पॉजिटिव है, CO 3 पॉजिटिव है, तो 3d6 हो जाएगी। अब इसके केस में H2O है लीगेंट मेरा बच्चा। जब H2O लीगेंट होता है ना, मैंने कहा था जब CO 3 पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट दो 7 लीगेंट्स हमारे सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट की तरफ फिल करो, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या होगा, -0.4, मेरे को रेड पेन यूज़ करना चाहिए था, आई शुड मेक इट मोर एस्थेटिक ना, या -0.4 डेल्टा नोट इंटू क्या 6 है 6। तो इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई हमारी, सिस्टम कितना स्टेबल हो गया यार, है ना, कितना स्टेबल हो गया सिस्टम। तो आपने जितना यहाँ तक किया आपको समझ में आया बच्चे, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया ना। नहीं आया आपको कुछ भी समझ में, क्यों नहीं आया बताती हूँ मैं क्यों नहीं आया। क्योंकि बच्चे आपने एक बात ध्यान दी कि अगर मैंने यहाँ पे पेयरिंग कराई है तो बच्चे पेयरिंग एनर्जी भी कंज्यूम हुई होगी कि नहीं हुई होगी। अब जब ऊपर जगह खाली है तो यहाँ क्या आ सकता है, यहाँ हमारे पेयरिंग एनर्जी के पैसे तो देने पड़ेंगे ना, जब इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा किया है तो +2p आएगा। p क्या है, पेयरिंग एनर्जी, +2p आएगा। अब 2p की वैल्यू क्या है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको मेंशन कर दिया जाएगा। आगे आपको बात समझ में। हालांकि यहाँ हमें पैसे नहीं देने पड़े, क्यों नहीं देने पड़े, क्योंकि इसलिए नहीं देने पड़े क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। अब उसके बाद 5 फिल होने के बाद वो 6 7 तो यहीं पे ही आएंगे ना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बात समझ में। और इसके केस में क्या होगा, इसके केस में 3 ने पेयर किया है तो यहाँ क्या आ जाएगी, +3p, है ना, +3p आ जाएगी। अगर आपने इतना किया है तो आपको समझ आ गया है ना, आपको समझ आ गया। तो टू योर सरप्राइज बच्चे आपको समझ नहीं आया है, आपको समझ नहीं आया है। क्यों ऐसा क्योंकि मेरा बच्चा ध्यान से देखो ना, आप CFSE कैलकुलेट करनी है आपको इस सिस्टम की। चलो मैंने मान लिया कि जो 6 की एनर्जी लो हो रही है तो -0.4 डेल्टा नोट, ये 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। पेयरिंग आपने करवा दी 3p,
3p। बच्चे 3p क्यों कराई? अगर देखो, अगर ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होता तो ऊपर 2 जाते, छठा तो यही आना था ना। छठे ने कौन सी किसी की जगह हड़पी है, ये झड़पी तो 2 ने है ना बस। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2p आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आ गया ना कैच आ गया ना? फंस गए ना मेरी बातों में? अब बच्चे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पढ़ी है हमने, अब तक हमने पढ़ा सारा का सारा ऑक्टाहेड्रल के केस में। अब हम थोड़ी इंपॉर्टेंस दे देते हैं टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस को भी। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थी जो ऑक्टाहेड्रल के केस में थी, उसको हम बोलते थे डेल्टा नोट। लेकिन जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, यानी कि जो 2 और मोर जो ग्रुप्स बनते हैं हमारे, मतलब वो ग्रुप्स बनते हैं जैसे T2 EG, मतलब जो भी हमारे बनते हैं, जो एनर्जी लेवल्स बनते हैं, उसमें क्या होता है? टूटने को हम कह देते हैं ना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उस एनर्जी गैप को। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में हम उसको कहते हैं डेल्टा नोट, और टेट्राहेड्रल के केस में कहते हैं हम डेल्टा टी। अब जो डेल्टा टी है ना, वो उसके डेल्टा नोट के कंपैरिजन में कितना है, उससे डेल्टा टी हमेशा कम होता है, यानी कि स्प्लिटिंग हमेशा कम होती है। तो कितनी कम होती है बच्चे? तो जो डेल्टा टी होती है ना, वो डेल्टा नोट का 4/9 होती है। ऐसा क्यों? इसके ना 2 रीजंस है मेन। एक मैं अभी बता देती हूँ, एक अपनी हायर क्लासेस में हमें पढ़ने को मिलेगा ये, ठीक है? कभी फुर्सत में डिस्क्राइब करूँगी उसे मैं। देखो आप ये देखो ना, ऑक्टाहेड्रल के केस में देयर वर 6 ligands approaching, so there would be more repulsion. More repulsion means more splitting. But in case of tetrahedral, there are only 4 ligands approaching. So 4 ligands means less ligands approaching, less ligands means less repulsion means less crystal field splitting. और ये जो डेल्टा टी और डेल्टा नोट है ना, इसकी एक बात, इस कंडीशन जो है, इसकी कंडीशन ये है कि ना जो हमारे जो लिगेंड है ना, लिगेंड सेम होना चाहिए। लाइक अगर NH3 है तो दोनों के केस में NH3 होना चाहिए, और जो मेटल आयन है ना, मेटल आयन भी सेम होना चाहिए, और मेटल आयन के ऊपर, मतलब मेटल आयन बोल रही हूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम ही होगा। आगे बात समझ में? इतनी बात आई आपको समझ में? तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अब क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा टी की डेल्टा नॉट के कंपैरिजन में बहुत कम हुई, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी ना, तो ये इससे कम हुई, डेल्टा टी कम हुई। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, जो मेजरली इन द सेंस जो कि हम पढ़ते हैं, वो होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो डेल्टा टी मतलब स्प्लिटिंग बहुत कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकता है, पेयरिंग के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये क्या होते हैं मेरे बच्चे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके केस में कैसे होता है एनर्जी डायग्राम? तो इसके केस में एनर्जी डायग्राम पढ़ लेते हैं, एक बहुत ईजी है। इसमें जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल के केस में पढ़ा था ना बच्चे, ऑक्टाहेड्रल के केस में पढ़ा था कि 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल आयन, जब वो आइसोलेटेड स्टेट में होता है। जब वो किस में होता है मेरा बच्चा? आइसोलेटेड स्टेट में। आइसोलेटेड स्टेट में मतलब लिगेंड्स अप्रोच नहीं कर रहे उससे, वो दूर है लिगेंड्स से, ठीक है? जब वो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, एंड इट इज एक्सपीरियंसिंग अ स्फेरिकल हाइपोथेटिकल स्टेज होती है कि स्फेरिकल फील्ड आ रही है, स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है लिगेंड्स की, तो ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल डीजेनरेट बट दे आर एट द हायर लेवल। लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, दिस रिप्रेजेंट्स एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके बच्चा, देन you know what are those 5 orbital dxy dyz dxz dx square minus y square dz square। अब वो क्या हो जाते हैं? हायर स्टेट पे चले जाते हैं। देन दे रियलाइज कि अटैक तो उन पे, मतलब सब पे नहीं हो रहा, कुछ पे हो रहा है। जैसे कि ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने पढ़ा था कि जिस पे अटैक हो रहा था वो कौन थे? जो कि हमारे एक्सिस पे प्रेजेंट थे, उन पे अटैक हो रहा था, तो फिर उनकी एनर्जी बढ़ रही थी, जैसे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की एनर्जी बढ़ रही थी। लेकिन जो होता है हमारा ये जो टेट्राहेड्रल के केस में, यहाँ पे अटैक एक्सिस पे नहीं होता, इनके बीच में, इन बिटवीन द एक्सिस अटैक होता है। तो यहाँ पे जो केस आ जाता है, जो कई बच्चों का डाउट होता है कि दीदी उल्टा केस भी हो सकता है कि जो 3 वाले हो वो नीचे, 3 वाले जो है ऊपर आ जाए और ये 2 वाले नीचे आ जाए, वो टेट्राहेड्रल के केस में होता है। कि जैसे कि इसको ना, जब वो देखता है कि इन बिटवीन द एक्सिस अटैक हो रहा है, तो जो 3 वाले हैं ना, 3 जो है हमारा, वो ऊपर आ जाता है और 2 नीचे आ जाते हैं बच्चे। आगे बात समझ में? ये होता है अगेन बेरी सेंटर, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल में था। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जहाँ पे हम इसको 2 वाले एनर्जी लेवल को हम EG कह रहे थे ऑक्टाहेड्रल के केस में, इस केस में इसको हम कहेंगे सिर्फ E, क्योंकि भैया G मैंने बताया था बच्चे, मैंने G बताया था कि G क्या होता है बच्चे?
गेरार्डे होता है, सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सिमेट्रिकल कभी नहीं हो सकते। आगे बात समझ में, अभी के लिए सिमेट्रिकल है, आगे इसकी फर्दर बहुत मीनिंग है। इसका एक जर्मन वर्ड है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम हायर क्लासेस में परस्यू करेंगे ना सब केमिस्ट्री को, तो ग्रुप थ्योरी में पढ़ेंगे। और इसको हम T2 कहते हैं, T2G नहीं कहते। आगे बात समझ में, T2 जैसे किसी बच्चे का नाम हो। तो बच्चे ये जो एनर्जी गैप होता है ना, इसको हम डेल्टा टी कहते हैं, बताया था मैंने आपको। और इस वाले को जैसे उस केस में जब डिक्रीज कर 0.4 डिक्रीज, तो यहाँ पे 0.4 इंक्रीज करेगी डेल्टा टी। आगे बात समझ में। और इसके केस में 0.6 डिक्रीज करेगी। नीचे हमेशा डिक्रीज होता है ना मेरा बच्चा। आगे बात समझ में, इतनी बात आई आपको समझ में। अब जैसे हमने वो जो फार्मूला, एक तरह से फार्मूला ही कह सकते हैं उसे, चीट कोड, मतलब हालांकि याद करने का तो कुछ था नहीं, पर स्टिल कि कुछ होना चाहिए आपके उसमें फार्मूला शीट में, इस करके मैंने आपको बनवाया था ऐसे। जैसे इसके केस में किसके ऑक्टाहेड्रल के केस में डी और डी सब शेल में n इलेक्ट्रॉन्स है, ई एनर्जी लेवल पे तो p नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और T2 पे कितना है, q है। तो ई वाले पे तो 0.4 क्या हो रहा है मेरा 0.6 क्या हो रहा है बच्चे, कम हो रहे हैं। तो 0.6 कम हो रहे हैं, तो इसको कह देंगे -0.6 डेल्टा नोट। नॉट हम इकट्ठा लिख दें, डेल्टा नॉट नहीं डेल्टा टी, क्योंकि टेट्राहेड्रल का केस पढ़ रहे हैं ना। और क्यू क्या हो जाएगा मेरा बच्चा 0.4। आपको मैंने कहा था ना कि सारे हाई वो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो टेट्राहेड्रल में पेयरिंग एनर्जी का कोई लोचा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। आगे बात समझ में, आपको ध्यान रखना है डेल्टा टी की टर्म्स में करें। अगर डी क्यू की टर्म्स में करते तो ये 6 होता। मैंने बताया था ना डी क्यू इज टू डेल्टा नॉट इज इक्वल्स टू 10 डी क्यू, बताया था डेल्टा। और अगर मैं इसको डेल्टा नॉट की टर्म्स में लूँ, अगर मतलब मेटल आयन सेम है, व्हेन सेंट्रल मेटल आयन इज सेम, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है और लिगेंड्स आर ऑल्सो सेम, तब क्या हो जाता है 4/9 हो जाती है ना डेल्टा नॉट की। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/9 डेल्टा नोट। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, जो लेकिन बताया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन सेंट्रल मेटल आयन इज सेम बोले तो आयन बोल दिया ना कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा मेरा बच्चा, सेम होगा। और लीगेंट कौन सा है वो भी सेम होगा, एंड लीगेंट ऑल्सो सेम, लीगेंट इज ऑल्सो सेम। मुझे आती है इंग्लिश, पर वो जल्दी में लिखने के लिए कर रही हूँ। अब जैसे इसके केस में इसमें CO2 पॉजिटिव है, और इसके केस में भी CO2 पॉजिटिव है, मेटल आयन भी सेम है, क्लोराइड ही लीगेंट है क्लोराइड, लेकिन डिफरेंस यही है टेट्राहेड्रल है ये ऑक्टाहेड्रल। मान लो डेल्टा नॉट की वैल्यू 1500 किलो जूल पर मोल है, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन मैंने एक मान लिया कि 1500 किलो जूल पर मोल है। तो डेल्टा टी की कितनी वैल्यू होगी, बहुत सिंपल है, 4/9 इंटू 1500 किलो जूल पर मोल। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो इसके साथ बच्चे CFSE आपका कंप्लीट हुआ, कंप्लीट करा दी मैंने, थ्योरी करा दी है। इसकी एक एप्लीकेशंस ये भी होती है कि ये हमारा बताता है कि जो हमारे जो हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, ये मेजरली कलर्ड क्यों होते हैं। तो उसका भी हमारा किसने बताया, जो VBT की लिमिटेशन थी, ये कुछ नहीं बता पाई कलर के, तो CFSE ने उसको भी हमारा CFT ने हमारा उसको भी बता दिया कि वो कलर क्यों शो करते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसकी एक लिमिटेशन है बस, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हमने CFT पढ़ा कि ये पॉइंट चार्जेस को कंसीडर करता है। अगर वो पॉइंट चार्जेस को कंसीडर करता है, मैं आपको एक एग्जैक्ट बता देती हूँ जो NCERT की वर्डिंग्स है कि पॉइंट चार्जेस को कंसीडर करता है, तो सबसे ज़्यादा जो स्प्लिटिंग होनी चाहिए थी वो जो हमारे नेगेटिवली चार्ज आयंस है वो शो करने चाहिए थे। लेकिन आप देखो नेगेटिव चार्ज आयंस जो होते हैं, ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें तो ये बिल्कुल वीक फील्ड लिगेंड्स है। हालांकि जो न्यूट्रल वाले हैं CONO जो मैंने बताया था, EN NH3, इनकी हाई मतलब वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कंपैरेटिवली। तो ये तो एक मतलब ये हो गया ना कि बिल्कुल ही हद होगी कि मतलब आप पहले तो कहते पॉइंट चार्जेस में तो ज़्यादा रिपल्शन होना चाहिए, तो स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए।
तो आपको और एक और वीकनेस ये है कि जैसे कि वीबीटी ने तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया था आयनिक कैरेक्टर को, सीएफटी ने बिल्कुल ही वो क्या नाम है कोवेलेंट कैरेक्टर को इग्नोर कर दिया, विच इज़ नॉट करेक्ट। सारे कैरेक्टर्स होते हैं एक बॉन्ड में। तो इसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए आई LFT एंड MOT, LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ प्रेजेंट स्टडी। अब मैं इसको रीड कर देती हूँ। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन द वीडियो प्लीज़ कॉमेंट मी डाउन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द subscribe the channel and like the video, and your comments matter a lot. The crystal field model is successful in explaining the formation structure. Like अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ी मैग्नेटिक मोमेंट के डेटा की, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें ये पता चल गया ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिंकेज इस करके पेयरिंग शो कर रहा है, इस करके इतनी और ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, हमें पता चल रहा है। कलर के बारे में भी हमें पता चलेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊँ कि कैसे पता चल रहा है CFT की मदद से। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हाँ भाई, अगर मुझे पता है कि वो पेयरिंग कर रहा है नहीं कर रहा तो मैं बता सकती हूँ वो पैरामैग्नेटिक बनाएगा कि डायमैग्नेटिक बनाएगा बहुत ईजीली। And to a large extent ये सारी बातें बता दी उसने। However, from the assumption that the ligands are point charges, it follows that anionic ligand should exert the greatest splitting effect. जैसे कि मैंने बताया कि जो अगर ये पॉइंट चार्जेस कह रहा है तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन तो नेगेटिव चार्जेस को करना, नेगेटिव आयंस को करना चाहिए। The anionic ligands actually are found at the low energy, at the lower end of the spectrochemical series. Yes, I have told you कि मतलब वो तो सबसे लास्ट में ही है। Further, it does not take into account the covalent character of bonding between the ligand and the central atom. True. And these are some of the weaknesses of CFT, which are explained by ligand field theory and molecular orbital theory, which are beyond the scope of their present study. So that's all for the video. Thank you so much for watching, and keep studying, stay happy, and God bless you. All the best for your future.